Hello students, how are you? Today we are going to solve the question paper of humanities of stage 2 that was held on 16 November 2025. Our part 1 that is what we will be solving, that is general humanities aptitude. Okay, so let us start with the solutions. Our first question is, on which of the following modern aspects did the New Germany place strong emphasis? Okay, this question is from the rise of nationalism in Europe, and when the New Germany was formed, they emphasized on which of the following systems? Okay, currency, banking, legal system, or demography. So as per the chapter that is rise of nationalism in Europe, they emphasized on currency, they emphasized on banking, they emphasized on the legal system, but they didn't emphasize on the demography. So our correct answer is 1, 2 and 3. So from this paragraph, the 1, 2 and 3 are correct, that is option D. So our correct answer is option D. Okay, now let us move to the next question. Identify the characteristics of Cavour among the following and choose the correct option. Okay, Cavour, Count Camillo di Cavour. He was the chief minister of the Italian state. Okay, and he was given the charge of unifying the Italy. So what was his characteristics? Okay, he was an Italian statesman, that is true. He spoke French and much better than Italian, that is also true. He was a tactful diplomat, that is also true. He belonged to a royal family, that is false. So as per the question, we are asked about the correct option. The correct option is 1, 2 and 3. So from this option, 1, 2 and 3 is here, that is option B. So our correct answer is option B. Okay, now let us move to the next question. Our next question is ki there is a map given to us. It is showing the British Empire in 1886. British Empire's extent, it is shown in the map. Our question is, which of the following element depicted in the painting same conflicting when presented together? Okay, in this painting, what are those two aspects which both are in this painting, but both these aspects are conflicting? It means they are not associated with each other. Okay, our option is the British soldier and British colony is spread in both east and west. Okay, here there is nothing contrasting feature, so that is not a correct option. The variety of animals and costumed figures depicting countries and their people. Okay, that is also true, but there is nothing what we call conflicting. Britannia, the personification of Britain seated on the top of the world, and the word federation written at the top of the image. Okay, now this is what we have to look out, that the Britannia, which is the allegory of the Britain, she is sitting on the world, and at the same time federation is written over the top. So these are two conflicting features, because when you are saying she is sitting on the world, it means she is overall ruler of the world, and when you are saying federation, it means it is always talking about the division of balanced power between the central authority and the state authority. So these two features are technically contrasting features. So our correct answer is option C. Okay, now let us move to the next question. Certain events are given below, choose the appropriate chronological order. Okay, now certain events are given to us, and we are asked about the proper chronological sequence. So for that we need to find out the years. Coming of Simon Commission, that is 1928. Demand of Purna Swaraj, that is 1929. Already is given here 1919, and Champaran Satyagraha, that is 1917. Now we have to arrange it accordingly. So as per the question given to us, correct sequence is 4, 3, 1 and 2. So from this option, our correct answer is option D, that is 4, 3, 1 and 2. Okay, now let us move to the next question. Arrange the following statements in sequential order based on the event that shaped the non-cooperation movement. Okay, so we are given certain events, we have to arrange it, which happened first and which happened later. So General Dyer opened the fire at the large crowd, forced recruitment carried out, defeat of the Ottoman Empire, and Gandhiji launched nationwide Satyagraha. So as per the question, the event that took second one, so this event happened first. Then what was the second event? The second event was Gandhiji launched Satyagraha against Rowlatt Act. It happened on 6 April 1919. Okay, then third event is after the Satyagraha, we had seen that on 13 April 1919 Jallianwala Bagh happened. So it happened on 6 April
and it happened on 13 April. And in the last, after this whole event, before the initiation of the what do we call it, non-cooperation movement, this event took place. So this is our last event. So this is first, this is second, this is third, and this is fourth. As per the question, what is our correct answer? Our correct answer is 2, 4, 1, and last is 3. So as per the option 2, 4, 1, 3. So our correct answer is 2, 4, 1, 3. Correct answer is option B. Okay, now let us move to the next question. Identify the crop with the help of the following information. Okay, certain informations are given to us and we need to identify the crop. First is, it is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop, 21 to 20 degree centigrade is required, grows well on all alluvial soil, use modern inputs. Okay, so the correct answer is, the crop that is associated with this all in hints is option B, that is maize. Okay, now let us move to the next question. What was the cereal crop? Which of the following are cereal crops? So as per the given to us, rice, it is a cereal crop. Groundnut, it is an oil seed. Wheat, it is a cereal crop. Mustard, again it is an oil seed. And millet, it is a cereal crop. So cereal crops are rice, wheat, and millet. So our correct answer is 1, 3, and 5. So from this option, where we find this option? Option C, that is 1, 3, and 5. Okay, now let us move to the next question. Which of the following statement is correct about sugarcane crop? So certain statements are given to us. Which of the following regarding sugarcane is that is correct? First is, it is grow well in hot climate. That is a wrong statement. Major sugarcane producing in Himachal Pradesh, that is also a wrong statement. It is a tropical as well as subtropical. That is correct statement. India is the largest producer of sugarcane. That is also wrong statement. So our correct answer is option C. Okay, now let us move to the next question. Match column 1 with column 2. Okay, column 1 is given and we need to match it with column 2, and we are being given certain areas of oil fields and power plants, and we need to match it with the states. First is Chandrapur. So Chandrapur is in Maharashtra. Second is Mayurbhanj. Mayurbhanj is in Odisha. Then third is Kalol. Kalol is in Gujarat. And fourth is Bauxite. Bauxite mines are found in Amarkantak. So our correct option is 4132, and from this, where do we find this option 4132? That is option B. Okay, now let us move to the next question. Manganese is used in the manufacturing of, okay, manganese is used in the manufacturing of, steel, true. Bleaching powder, true. Insecticide, true. Paints, true. So all manganese is used in the manufacturing of all these things, 1, 2, 3, 4. So our correct answer is option D, 1, 2, 3, and 4. Okay, now let us move to the next question. The variety of coal is produced by the decaying plant in swamp. It contains low carbon and high moisture content and low heating capacity. Identify the variety of the coal. Okay, as per the given hints, this hints refer to the lowest quality of coal, which is peat. So our correct answer is option B. Moving to next question. Our next question is, a recognized political party is. So we are given 4 options and we are being asked that which of the following option is belong to the question. So our first option is a party that is present in one of the federal unit. It means that is present in one of the federal unit, that is constituent units. Second is a party that is present in several and all units of the federation. They are asking that as the recognized political party is that political party which is present in all the federation or all the constituent units of the nation. Then a party that is based on regional and communal diversities, and option D, a party recognized by the election commission with all the privileges and facilities. So our correct answer is option D. A recognized political party is a political party that is recognized by the election commission, and on the basis of their recognition they are given certain privileges, okay, and certain facilities. So our correct answer is option D. Okay, now let us move to the next question. This is an assertion and reason based question. Okay,
assertion is the political party reflect a fundamental political division in a society. See what is given here. We are being given an assertion on the basis of a statement which says that political party reflect the fundamental political division in a society. See, every political party is based on certain ideologies, and those ideologies come from the people itself in a democracy. So therefore, those ideologies of the people belonging to different ideologies, their ideologies are being reflected by the political parties. It is true that political parties reflect a fundamental political division in a society. Reason is party work to convince people why their policies are better than others and implement them by seeking popular support. Obviously, because when the political parties goes into the election and they convince the people on the basis of their policies and their ideologies, so certainly they reflect their ideologies and their policies are based on the common opinions of the people or opinion of the certain section of the society. Therefore, this statement is also true statement. So our correct answer is option A. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. Okay, now let us move to the next question. Our next question is, which of the following is the correct meaning of an alliance? Now we are asked what is the meaning of alliance from this 4 option. So let us solve the question. Our option A is two parties together form the government. When two parties together form the government, that is called an alliance. So that is a false statement. Then leftist and rightist come together to form the government, that is also a false statement. When state and national parties together form the government, quite true, but not appropriate definition. Therefore, this is also a wrong statement. Then option D, when several parties in a multi-party system join for the purpose of contesting election and winning power. So our correct answer is option D. When several parties in a multi-party system join together, they come together to form the government as well as to hold the power and winning the election. So such group of political party are called alliance. So our correct answer is option D. Now let us move to the next question. Again, now we are given match the columns. Okay, union list, state list, concurrent list and residuary subject. First of all, union list. It is all about the work or duties that is done by the central government. State list, it is associated with the state government only. Concurrent list, both state and central government can make laws on this subject. Residuary list, only central government can make laws on it. So as per given option, when we go with the P, that is union list, our answer will be for uniformity central government legislate in it. So P goes with 2. Then Q, state list subject, state government alone make laws on it. So Q go with 1. Concurrent subject, I already told you that both government can do. So subjects under jurisdiction of central and state government, that goes 3. And S, residuary subject, central government legislate on new subject, that is 4. So our correct answer is 2, 1, 3, 4. So where do we find 2, 1, 3, 4? That is option D. Our D option is the correct answer. Now let us move to the next question. Identify the correct statement about the theory of federalism in Indian Constitution. Okay, these certain statements are given to us regarding what we call it federalism. Now we need to find out which are correct, which are wrong. Okay, first of all, let us read the statement. The Constitution declared India as a union of states. That is true. The sharing of power between the union government and the state government is the basic structure of the Constitution. That is also true. It is easy to make changes to this power sharing arrangement. No, the power sharing arrangement cannot be made unilaterally by one level of government. Both level consent is required. So that is a wrong statement. Parliament can change this arrangement of its own. That is also false, because consent, I already told you, consent of both level of government is required. So our correct statements are 1 and 2. So our option is option A. Now let us move to the next question. Which of the following organization is providing data regarding employment in India? Okay, in India, the data regarding employment is collected and provided by the National Statistical Office, which is NSSO. Okay, so our correct answer is option A. Next is, according to 2017-18 data, the share of different sector in employment in India was, okay,
Now we are being given data that primary sector employs 44% people, secondary sector employs 25% people, 37% people are employed by tertiary sector. Out of these three sectors, why is ratio of employment in primary sector higher? Okay, why this is high than both of them? So we all know that maximum people of India are engaged in agriculture. So from the four options, workers in the primary sector are underemployed, primary sector is not given importance by the government, efforts of labor. So when we see this option, worker in the primary sectors are underemployment, that is true. Primary sector is not given importance by the government, that is false. Effort of laborers are not equivalent in all sectors, that is also false. Outsourcing of job opportunities in secondary tertiary, no, because we are talking about primary sector. So outsourcing of jobs in secondary and tertiary sector has nothing to do with it. Efforts of laborers are not, no, laborers put a complete effort, but problem is that in agriculture there is underemployment. So because of this underemployment, most of the people are engaged in the primary sector. Therefore we see that percentage of people employed in primary sector are highest. So our correct answer is option A. Now let us move to the next question. Dash refer to an agreement in which lender supplies the borrower with money, goods or service in return to the promise of the future payment. Okay, so we are talking about an agreement in which lender means the person who is giving money, and borrower, one who is getting the money, and borrower promised to the lender that he will pay the money in the future. So this all conditions match with the option D, which is called credit. So credit is an agreement between lender and borrower regarding the future payment of the money. So our correct answer is option D. Our last question is, why do lenders often require collateral before lending loans? Okay, lenders जो है उनको collateral की requirement क्यों होती है? Why do they requirement collateral? Okay, to lower interest rates for the borrowers, that is false. No. To establish personal relation, that is also false. To increase their profit margins, that is also false. To mitigate the risk of loans, that is correct, because collateral is always asked if in case the borrower get default. So the risk of repayment can be ensured by the collateral. So our correct answer is option D. I hope you understood all these answers. Best of luck for your results. Thank you so much and have a very nice day. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इसी आईडी पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to discuss the solutions of logical reasoning part of your Matrix Olympiad exam that is held on 16th of November 2025. So let's start this session. So the first question is of passage. एक passage आपको दिया गया है। I hope आपने इस passage को जब read किया होगा you get to know about many things, जैसे कि मैंने से मैं काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ। काफ़ी जैसे क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, अजम्पशन जैसे, स्ट्रेंथनिंग जैसे, वीकनिंग जैसे, वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज देयर, इन्फरेंसेस आर देयर, है ना। सो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप पैसेज को बहुत ही क्रिटिकली समझें, एनालाइज करें, उनको ध्यान से क्या करें, रीड आउट करें। सो जब आपने पैसेज को रीड आउट किया होगा, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।
सीधा थोड़ा सा पहले पैसेज को देखते हैं, किसके बारे में है। देखिए इंडियन डिप्लोमेसी की चैलेंजेस क्या है उनके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग किया गया है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी इन द सबकॉन्टिनेंट इज टू परसुएड इट्स नेबर दैट इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट। अपने जो हमारे नेबर्स हैं उनको ये बताना जरूरी है कि इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू देम, इट इज देयर सपोर्टिंग हैंड। कहीं ना कहीं एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इंडिया इज अ फ्रेंड, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नॉट अ थ्रेट। Far from feeling in any way besieged by India, they should be able to see it as offering access to vast market। सब कुछ अलग करके उनको इंडिया को इस तरीके से देखना चाहिए जो a land of अपॉर्चुनिटीज, अ वास्ट मार्केट, जो उनको क्या ऑफर करता है, बहुत ही बड़ा मार्केट स्पेस ऑफर करता है, डायनामिक ग्रोइंग इकोनॉमी विच वुड प्रोवाइड देयर ओन इकोनॉमीज विद फार ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज देन मोर डिस्टेंट पार्टनर्स। कहीं ना कहीं जो दूर के जो देश हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया उनको क्या कर सकता है, ऑफर कर सकता है। दिस वुड go beyond economic benefits, as David Maloney argues. Economic cooperation represents the easiest sell to various constituencies within the countries of the region। देखिए डेविड मेलोन की जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। Were this to prove successful cooperation on more divisive and sensitive issues? देखिए बहुत तरह के और भी इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है मेंशन किया गया है, सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी, टेररिज्म इज देयर, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज देयर, एथनिक स्ट्राइफ इज मेंशन्ड हियर, कुड बी अटेम्प्टेड विद ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अलग करके हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया को एक ऐसे इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर इट इज सीन एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग इन साउथ एशिया, दिस इज मेंशन्ड हियर। उसके बाद में देखिए आपके सामने काफी सारी चीजों को मेंशन किया गया है। इफ इंडिया हैज टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल इन द वर्ल्ड वी हैव नो चॉइस बट टू लिव इन पीस। अगर इंडिया को अपने एक ग्रोथ स्टोरी क्रिएट करनी है, एक सक्सेस की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कहीं ना कहीं अपने नेबर्स के साथ पीस में रहना पड़ेगा। हमारे नेबर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो उधर यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इसके ऊपर कर रहा है। म्यूचुअल सिक्योरिटी की अगर बात करूं, हार्मनी की बात करूं, कोऑपरेशन के साथ ही कुछ किया जा सकता है, टेबल टॉक्स के साथ ही हमेशा आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि नेहरू लेफ्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमॉर्टल लाइंस, नेहरू ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस को यूज किया, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत लंबा चलना है। सो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, नेहरू की स्टेटमेंट मेंशन की गई है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस पैसेज हियर। गुरु नानक ऑन हिज डेस्क व्हेन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ही ऑल्सो सेड, ओ नानक बी टाइनी लाइक द ग्रास, बी टीनी लाइक द ग्रास, for other plants will wither away but grass will remain evergreen। जो grasses है वो हमेशा green रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा छोटे बन के रहो। छोटे बनने का मतलब क्या हुआ, अपना किरदार जो है, आप देखिए ये काफी बार हम डिस्कस करते हैं कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड ईगो इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हमारे साथ कोई बैठता है तो उसको ऐसा फील ना हो कि वो बहुत ही छोटा है या बहुत ही उसको इक्वलिटी फील हो। तो वही डिस्कशन यहाँ पे नानक की स्टेटमेंट को, नानक जी की स्टेटमेंट को यूज करके आपके सामने दिखाया गया है कि हमेशा घास की तरह एक छोटे तिनके के समान रहें, अपने व्यवहार को वैसा रखें, ठीक है। was seen by many Indians of exalted ambition as a teeny man, but he had the mind and heart of ये देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया गया, किसका, शास्त्री जी का मेंशन किया गया है कि कहीं ना कहीं उनके कद से आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कद उनका बहुत ही कम था पर दिल उनका बहुत ही क्या था, बड़ा था, क्योंकि दिल से इंसान क्या होता है, ब्रेव होता है। दिल का उसका विजन जो होता है वो डिसाइड करता है उसकी पर्सनैलिटी को, उसके दूरदर्शिता को। पीसफुल उसका एक विजन था, किसका, शास्त्री जी का एक विजन था। उनका क्या विजन था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स। कहीं ना कहीं देख रहे हो पूरे पैसेज के अंदर एक ही बात को डिलीवर किया जा रहा है। एक पैसेज के अंदर किसके बारे में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स, नेबर्स के सपोर्ट की बात की गई है, हार्मनी की बात की गई है, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की गई है, और कैसे इंडिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाया जा सकता है। अडॉप्टिंग द डेमिनर, द मॉडेस्टी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ग्रास मे वेल बी द बेस्ट वे फॉर इंडिया टू एंश्योर दैट इट्स ड्रीम रिमेन एवरग्रीन इन ओन बैकयार्ड। इंडिया अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकता है उसके बारे में यहां पे डिस्कस किया गया है। आई होप आपको पैसेज कंप्लीटली समझ आ गया होगा। इसको करने के बाद जो इसके आंसर्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या चैलेंज है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, टू मैनिफेस्ट इंडिया एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी बोथ आर, ऑल द थ्री आर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द थीम ऑफ द पैसेज। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट answer here, to manifest India is as a land of opportunities. If India has to fulfill its potential in the world, we have no choice but to live in peace with our neighbors in mutual security, harmony and cooperation in the context
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स ओपिनियन। बताइए, स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, सपोर्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड नॉट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया शुड असर्ट इट्स माइट ओवर इट्स नेबर, ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स इज द की टू इंडियाज स्टेलर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following is the central theme of the passage? थीम क्या है पैसेज की, बताइए। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन विद इट्स नेबर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। एमरजेंस ऑफ इंडिया एज ग्लोबल पावर वुड नॉट बी द मेजर थीम, जो कंप्लीट थीम की बात की जाती है। द डोमिनेंस ऑफ इंडिया और इट्स नेबर बिल्कुल भी नहीं, डिस्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। प्रियोरिटाइजिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया, इसको डिस्कस तो किया गया है बट ही इज आस्किंग द मेन थीम ऑफ द पैसेज। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन विद द नेबर्स, कैसे उनके साथ कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ others opinion as stated in the passage? बताइए। So option number A, India should strive for greater economic integration which should be politically and administratively feasible. India can see borders as barriers and borders areas as buffer zones. India's stellar economic growth is thwarting her own opportunities. It is not India's interest to be generous to neighboring countries. Option number D complete एक distraction की तरह काम करता है, contradicting statement है. So option number C would also not be the answer here. Option number B will also not be the answer here. So option number A remains is the most suitable and the correct answer of this question. Question number 14 का आंसर क्या होगा? Option number A. India should strive for greater economic integration which should be politically and administratively feasible. So बढ़ते हैं आगे next question की तरफ. Which of the following can be inferred from the above passage? There is no nexus between cooperative existence and economic growth of a nation. Unless India's region becomes more self-centered, India is unlikely to develop into more regional power. Both are the distractors here. India can only become a great power if it works in isolation. अगर isolation में इंडिया काम करेगा तभी काम बन पाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो contradicting statement here. India cannot aspire to be a great power without the cooperation of neighbors. बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी would be the correct answer here. ऑप्शन नंबर डी would be the correct answer here. नंबर सीरीज क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. देखिए 3, 13, 31, 91 इज गिवन देयर. सिंपली आपको क्या करना है, इनके देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 31? इट इज द डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 18. सो उसके बाद क्या डिफरेंस आएगा? यू विल फाइंड कि 8 का डिफरेंस चलेगा. कितना डिफरेंस चलेगा? 8 का. सो 18 प्लस 8 is 26. So you just have to add 31 plus 26. So it will be 57. So the correct answer would be option number D, 57. Question number 17th. Which number will replace the question mark in the following number series? इनमें से क्यों ये जो हमें क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह नंबर सीरीज को फाइंड आउट करना है. सेम क्वेश्चन भाई. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. नंबर को देखिए. So the correct answer for it would be option number B, 74 would be the correct answer here. क्या आंसर रहेगा? 74. आपने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई किया है. फर्स्ट नंबर को 3 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई किया है +1. उसके बाद सीरीज बढ़ रही है. +1 के बाद +2 आएगा, +3 है, +4 है. सभी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आगे का जो नंबर है वो हमको यहां से मिलता है. सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18 हियर. सो आपको 8 लोगों का एक सीक्वेंस है जो एक रो के अंदर खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके. इसको आपको एक ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा इस चीज को फॉलो करता है. इनमें से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनकी सीरीज क्या बनती है. सबसे पहले बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी. सो 8 पीपल वुड बी देयर. जी कैनॉट बी एट द एक्सट्रीम एंड. सो आफ्टर रीडिंग दिस, जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, A is 6 to the left of E. So जो एक सीक्वेंस इसके अंदर बनेगा वो क्या बनेगा? A C B D
GFEH would be here. So ये सीक्वेंस बनाने के बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। बताइए, C is to the immediate left of A. C जो है वो A के लेफ्ट में है, नहीं, C A के राइट में है। D is immediate neighbor of B and F. D जो है वो B का नेबर तो है बट F का नेबर यहां पर नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। G is to the immediate right of D. G जो है वो D के बिल्कुल ही राइट में है, बिल्कुल राइट के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। D बिल्कुल इमीडिएट है राइट के अंदर। ऑप्शन नंबर A भी नहीं होगा। A एंड E आर एट द एक्सट्रीमेंट। A तो एक्सट्रीमेंट पे है बट उस साइड कौन है, H जो है वो एक्सट्रीमेंट के अंदर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19th। अग्रिमा टुक पार्ट इन अ स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन एंड वॉन इट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके कंक्लूजन को हमें देखना है कि अग्रिमा ने स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्ट किया और उसके अंदर जीती है। तो कंक्लूजन कौन से इसमें से फॉलो करते हैं? अग्रिमा इज द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर अग्रिमा जो है वो एक बेस्ट सिंगर है, नहीं है। ऐसा ये फॉलो क्यों नहीं कर सकता है कंक्लूजन? इट कैन नॉट फॉलो बिकॉज बेटा उसने किस में पार्ट किया था? सिर्फ स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्ट किया था। इट इज जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टेट, नॉट अबाउट द कंट्री। सो कंक्लूजन 1 कैन नॉट फॉलो हियर। अग्रिमा इज ऑल्सो ए गुड डांसर। यहां पे डांसर की बात कहां की गई है? इट वॉज डिस्कस्ड अबाउट सिंगिंग कॉम्पिटिशन हियर ओनली। सो बोथ द कंक्लूजन्स कैन नॉट फॉलो। सो द ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नाइदर कंक्लूजन 1 and 2 follows here. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनी ए हैज डिसाइडेड टू टेक ओवर कंपनी बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक कंपनी ए है जिसने डिसाइड किया है कि वो कंपनी बी को क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। तो बताइए कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है? कंपनी ए शैल बेनिफिट बाय टेकिंग ओवर कंपनी बी। नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंपनी किसी कंपनी को क्यों खरीदेगी, क्यों टेक ओवर करेगी? क्योंकि उसको बेनिफिट ही मिलेगा, इसीलिए शायद वो उसको क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है, कंक्लूजन 1 जो है वो इसको फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। कंपनी ए इज मोर सक्सेसफुल देन कंपनी बी। नॉर्मल सी बात है, जो कंपनी पावरफुल है वही कंपनी दूसरी जो वीक कंपनी है उसको क्या करती है, टेक ओवर करेगी। सो ये तो बहुत ही कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि कंपनी ए क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा सक्सेसफुल है कंपनी बी से। तो जो दोनों के दोनों कंक्लूजन है वो यहां पे फॉलो कर रहे हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो हियर। आई होप आपको लॉजिकल रीजनिंग के सभी आंसर्स यहां पर मिल गए होंगे। आपको बहुत अच्छे से सारे सॉल्यूशंस जो है वो समझ आए होंगे। सो बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल हियर। थैंक यू। Hello students, how are you? Today we are going to solve the current affairs portion of the question paper of MOF Humanities that was done on 16th November 2025, stage 2. So let us move with the solution. Okay. Our first question is India's first indigenous photonic radar has been developed by dash in 2025. Okay. In this question we are asked that the indigenous photonic radar which has been developed recently in India, it was developed by which of the following agency? So our correct answer is option C, that is DRDO. Okay, now let us move to the next question. Which bridge was inaugurated by PM Modi in June 2025, completing the Kashmir rail link? Okay, this was recently news that Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has inaugurated a bridge which is one of the highest bridge in the world, and it is built on the river called Chenab. So our correct answer is option C, that is Chenab rail bridge. Okay, now let us move to the next question. According to the revised criteria, what is the turnover limit for the medium enterprises? Okay, recently the government has decided a certain turnover limit for all the MSMEs, that is micro, small and medium enterprises, okay, and large enterprises. So according to this question, our correct answer is, that is rupees 500 crore. Okay, now let us move to the next question. How much has the Delhi budget 2025 allocated for the infrastructure project? Okay, it was in recent news that the Delhi government has decided certain amount for the infrastructural development in Delhi. So the amount was 28,000 crore rupees. So our correct answer is option C. Okay, now let us move to the next question. Who presented the Delhi budget 2025-26? Okay, so we are given 4 options. First is Arvind Kejriwal, second is Manoj Sisodia, third is Rekha Gupta, and option D is Nirmala Sitharaman. First of all, let us talk about Arvind Kejriwal. Recently, Arvind Kejriwal lost the election. Therefore, he is not the Chief Minister of Delhi.
Definitely Manish Sisodia also not, because the Arvind Kejriwal and Manish Sisodia both belong to the same Aam Aadmi party which has lost the election. Option D is Nirmala Sitharaman. No, she is the finance minister of India, therefore she is not going to pass the budget of Delhi. So correct answer is the new CM of Delhi. Her name is Rekha Gupta. So our correct answer is option C. Okay, now let us move to the next question. Which civilian honor was conferred upon PM Narendra Modi by Cyprus in June 2025? Okay, which CM honor was conferred upon Narendra Modi by Cyprus? Okay, in June 2025, when Narendra Modi reached to the Cyprus, they offered him the highest civilian award of their country, which is the Grand Cross of the Order of Macarius III. So the correct answer is option C. Now let us move to the next question. Jitendra Pal Singh has recently been appointed as India's new ambassador to which country? Okay, so as per the question, the Jitendra Pal Singh has recently been appointed as the India's new ambassador to which country? Okay, so Jitendra Pal Singh recently has been made the ambassador of Israel. Okay, now let us move to the next question. Which bank became the first Indian bank to implement CLARI 5 and CRP integration solution? Okay, this integration solution is regarding the dismiss or stricter implementation of rule against the fraud that is happening in the online system and the banking system. So to remove this, a certain bank has used this system. So our correct answer is, which bank has been using this system? So our correct answer is option A, that is Punjab National Bank. It is the first bank in India which has used this system for its solutions. So correct answer is option A. Okay, now let us move to the next question. Which country signed a tripartite MOU with India and UAE for the developing Trincomalee as an energy hub? Okay, so this is a pact signed between three countries, that is why it is called a tripartite act. That is MOU signed between the India, UAE, and the third country is option B, that is Sri Lanka. Okay, now let us move to the next question. What is the new education loan limit under RBI's revised PSL guidelines? Okay, according to RBI, the new loan limit for the education is, that is rupees 25 lakh rupees. Okay, so that is the correct answer, option C. I hope you got all answers of your questions. Best of luck for your exam and results, and I wish that you get the highest paid prizes from the MOF. Okay, thank you so much and have a very nice day. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इसी आईडी पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to solve the reading comprehension from the humanities part, that from the paper MOF which held on 16 November 2025, stage 2. Okay, let us start with the solution. Okay, our first paragraph is about women empowerment. Okay, so here certain things are given to you regarding the women empowerment, and in this paragraph women empowerment's factors, what are the factors responsible for
women not being empowered and how women can be empowered in the future, how society can play an important role, how our political system, how our economic system can play an important role in the empowerment of the women. So regarding this paragraph has been given. Okay, first of all, let us see what are the main things in this paragraph. Okay, we will explain it accordingly. Okay, so true empowerment of women is not merely the granting the rights already possessed by the other, but rather the transformation of social structure, value system and interpersonal dynamics that have fostered inequity for the centuries. Okay, so what this paragraph is saying कि अगर महिलाओं को empower करना है तो सिर्फ अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लंबे समय से जो वैल्यू सिस्टम, जो सोशल सिस्टम, जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से इनइक्वलिटी क्रिएट हुई है, उनको भी हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, मतलब उनमें भी हमें सुधार लाने की ज़रूरत है. Education, financial independence and legislative support continue to serve as necessary foundation. Deeper change only occurs when society intentionally interrogate and reconstruct the tradition, customs and belief that subtly reinforce patriarchal power, sometime without overt intentions. देखो ठीक है, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं की बढ़ती जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है. लेजिस्लेटिव सपोर्ट महिलाओं को मिल रहा है, ठीक है. लेकिन डीपर चेंज तब आएगा जब सोसाइटीज़ जो है इंटेंशनली अपनी मर्जी से अपने आप को इंट्रोगेट करेगी, अपने रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेगी, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, पैट्रियार्कल पावर को, जिनकी वजह से महिलाएं जो है पिछड़ रही हैं. इन मैनी कल्चर वुमेन्स चॉइसेस आर ऑफन सर्कमस्क्राइब्ड बाय द इनविजिबल बैरियर्स. कई बार महिलाओं की जो चॉइसेस होती है उनको भी इनविजिबल बैरियर्स से क्या कर दिया जाता है, घेर लिया जाता है. ये ऐसे बैरियर्स होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को वो रोकते हैं. ठीक है, जैसे कि सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी क्या कहेगी, अनकॉन्शियस बायस, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ऐसी चीज़ें चलती है दिमाग में. इसकी वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजिकल सबऑर्डिनेशन, महिलाएं अपने आप को जो है इस वजह से कमतर समझने लग जाती है और मेल्स के कंपैरेटिवली वो अपने आप को नीचा समझने लग जाती है. ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. ठीक है, और दस एम्पावरमेंट मस्ट बी सीन एज, इसलिए एम्पावरमेंट अगर करना है तो हमें एक्सपांडिंग एजेंसीज, चैलेंजिंग फिक्स्ड रोल्स, मतलब हमें अपने आप को व्यापक बनाना पड़ेगा, जो फिक्स्ड रोल्स है उनको भी कॉम्प्रिहेंड बनाना पड़ेगा. ठीक है, और महिलाओं के सक्सेस के वेज को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है कि महिलाएं सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करें बल्कि नॉर्म्स को भी शेप करें, इंस्टीट्यूशंस को भी शेप करें. When women begin to break through the ceiling of imposed limitations, there is a ripple effect transforming families. जब महिलाएं ब्रेक थ्रू करने लग जाती है तो उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ते हैं, फैमिली के ऊपर भी पड़ते हैं, वर्क प्लेस पर पड़ते हैं. ठीक है, और यहाँ पर महिलाएं सिर्फ पुरुषों को डुप्लीकेट ही नहीं करती है, बल्कि मतलब वो उनका मतलब इमिटेट नहीं करती है पुरुषों को, वो अपने लिए एक अपनी लाइफ और सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करती है, प्रोग्रेस अपनी तरफ आगे बढ़ाती है. तो ट्रू एम्पावरमेंट महिलाओं का तभी होगा जब महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी और उन्हें अपनी लाइफ का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का मतलब निकालने का मौका दिया जाएगा. तो ये पैराग्राफ इसी के बारे में बात करता है. चलिए अब इससे रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द डीपेस्ट बैरियर टू वुमेन्स एम्पावरमेंट. महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ा बैरियर है वो क्या है? तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि कुछ अनकॉन्शियस बायसनेस है और साथ के साथ में सोशल एक्सपेक्टेशन है. ज़माना क्या कहेगा, चार लोग क्या बातें करेंगे, क्या मुझे करना चाहिए, ये जो चीज़ें महिला के माइंड में चलती रहती है, और ये सिर्फ महिला के माइंड में भी, जिसके भी माइंड में चीज़ें चलती है वो उसको आगे बढ़ने से, डेवलप होने से रोकता है. और महिलाओं के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है. तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन बी. ओके, now let us move to the next question. The passage suggests that empowerment is a process of. इस पैसेज में क्या बताएगी कि एम्पावरमेंट क्या है? तो हमने जैसे पढ़ा था कि एम्पावरमेंट क्या है, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना, चीज़ों को व्यापक बनाना एक एम्पावरमेंट होता है. जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं सदियों से, उन नॉर्म्स को फिर से ठीक करना एम्पावरमेंट होता है. ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What transformation does the passage associate with true women's empowerment? कि महिलाओं का वास्तविकता में एम्पावरमेंट कब होगा? इस पैसेज से हमें क्या समझ में आता है? क्या राइट्स देने से आ जाएगा? नहीं. चेंजिंग ओनली फाइनेंशियल पॉलिसीज को बदलने से आ जाएगा? नहीं. रिडिफाइनिंग सक्सेस एंड रीशेपिंग इंस्टीट्यूशन, क्या सक्सेस
की जो परिभाषा है उसको बदलना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन के सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा, उससे आएगा। फोकसिंग ऑन एजुकेशन अलोन, सिर्फ एजुकेशन देने से आ जाएगा तो नहीं। इसके लिए महिलाओं को अगर एम्पावर करना है तो हमें पूरे सिस्टम को रिडिफाइन और रीशेप करने की ज़रूरत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does psychological subordination present a unique challenge to women empowerment? Psychological subordination, जब आप किसी के माइंड में ये चीज़ डाल दो कि वो इन्फीरियर है, जो हमारे पूरी सोसाइटी में फीमेल्स के साथ होता है, तो एक प्रकार का सबॉर्डिनेशन क्रिएट करता है। तो इस सबॉर्डिनेशन में क्या होता है, कुछ इनविजिबल बैरियर्स आ जाते हैं जो टेक्निकली सबको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। फीमेल उसको महसूस भी करती है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से वो इनविजिबल बैरियर्स कौन से हैं? इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व, नो। इट इज़ लेस impactful than legal subordination, no. It is embedded in social customs and less observable. ठीक है, तो जो यूनिक चैलेंज है एम्पावरमेंट का, मैंने क्या बताया, हमने बात की थी कि यूनिक चैलेंज, व्हाट इज द यूनिक चैलेंज? दैट इज इनविजिबल बैरियर्स। वो इनविजिबल बैरियर्स क्या हैं? कि वो जो बैरियर्स हैं वो सोशल कस्टम्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही होती है जो फीमेल को आगे बढ़ने से रोकती है। वो कस्टम के नाम पर हो, वो ट्रेडिशन के नाम पर हो, जो कहीं ना कहीं रोकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो बैरियर्स है वो ऐसे सीधे तो नहीं दिखते, कोई रोकने वाला सीधा तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो जो बैरियर्स होंगे वो सोशल कस्टम्स का रूप लेकर होंगे और ऑब्जर्वेबल नहीं होंगे। तो ये एक यूनिक चैलेंज है जो फीमेल एम्पावरमेंट को सबसे ज्यादा रोकता है। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a key indicator of real empowerment beyond just opportunity? Real empowerment क्या है विमेन का? जो की इंडिकेटर उसका क्या है जो एम्पावरमेंट का है? कि वो मेल सक्सेस को डुप्लीकेट करे? ऑब्वियसली नॉट। क्रिएट मीनिंग इन अनबायस्ड एनवायरनमेंट। अनबायस्ड एनवायरनमेंट में महिलाएं अगर अपने लिए मीनिंग तैयार करती है, अनबायस्ड एनवायरनमेंट, बायस्ड एनवायरनमेंट नहीं, अनबायस्ड, जहाँ पे महिलाओं को एक पर्टिकुलर इमेज में न देखा जाए, महिलाओं को पूरी अपॉर्चुनिटीज मिले, तो अकॉर्डिंग टू दिस द की इंडिकेटर क्या है कि भाई अनबायस्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी महिलाएं जो है वो जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे उनको। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म एक क्वाजी फेडरल सिस्टम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया गया है, बट इट इज़ फाइंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम का एक यूनिकनेस है। ठीक है, यहाँ पर ड्यूल पॉलिटी सिस्टम चलता है, यहाँ पर पावर शेयरिंग होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़े से पावर ज़्यादा है और ये एक्स्ट्रा पावर जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं कंपेयरिंग टू व्हाट वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए, अब जब फेडरलिज्म इंडिया में है तो यहाँ पर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है रीजनलिज्म की, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद जिसको हम बोलते हैं वो देखने को हमें कहीं ना कहीं मिलता है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर देखने को मिले, कल्चर के बेसिस पर देखने को मिले, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जबकि उनके पास पावर इक्वली शेयर हो रहा है, फिर भी क्षेत्रवाद हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में देखें कि भारत में लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर आम राय स्टार्टिंग में नहीं बन पाई थी, लेकिन बाद में सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर दूसरी लैंग्वेज को इन्फीरियर दिखाना, खुद की लैंग्वेज को सुपीरियर बताना, ये आज भी चलता रहता है देश के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे चीज़ों के अंदर जो है वो हमें इसका आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट मेक्स इंडियन फेडरलिज्म क्वाजी फेडरल रादर देन स्ट्रिक्टली फेडरल? अच्छा, भारत में भारतीय फेडरलिज्म क्वाजी फेडरल है, स्ट्रिक्ट फेडरल नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा होने का सिंपल सा रीज़न हमारा ये है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए थोड़ा सा यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है और साथ में फेडरलिज्म भी देखने को मिलता है, तो हम इसे क्वाजी फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is cited as their challenge stemming for regionalism? देखो, रीजनलिज्म से रिलेटेड बात हो रही है, तो रीजनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो जब किसी एरिया में रीजनलिज्म बढ़ता है तो वहाँ पर वो अपने लिए कुछ डिमांड्स रखने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर केसेस में रीजनलिज्म में जो डिमांड्स आती हैं, जो फेडरलिज्म में ज़्यादातर देखने को मिलती है, दैट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो हमारा रीजनलिज्म है उसके अंदर क्या होता है, डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
Okay, now let us move to the next question. Fiscal disparities मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमीज जो है किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा होती है, कुछ स्टेट्स के पास कम होती है, सेंट्रल के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है, और जब ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड हो जाती है किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंस के लिए। तो ये जो डिस्पैरिटीज़ है फेडरलिज्म में, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सिंपल सी बात होगी कि स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड कर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो हमारा करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ सब स्टेट्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट grants. So our correct answer is option B. Okay, now let us move to the next question. Which issue has at time ignited division despite being intended to unify the country? इन 4 इश्यूज में से वो कौन से इश्यूज हैं जो कि देश जिनका यूज करने का इशू देश को इकट्ठा करना था, देश के अंदर यूनिटी लाना था, लेकिन कई बार इस इशू की वजह से यूनिटी की बजाय कई बार जो है हमें कहीं ना कहीं जो है वाट के इग्नाइटेड मतलब डिविजन्स होते हुए नजर आते हैं। तो वो कौन सा इशू है जो कि जिसको किया गया था यूनाइट करने के लिए, लेकिन कई बार वो चीज़ जो है वो यूनाइट करने के बजाय लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती है। तो वो कौन सा इशू है? तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें इन चारों ऑप्शंस में से, तो इमरजेंसी पावर्स नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में लैंग्वेजेस को लेकर कई बार, जबकि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए गए थे जस्ट टू मेक श्योर दैट कि सारे स्टेट्स के बीच में सौहार्द बना रहे, हार्मोनियस लाइफ रहे देश में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो, बट स्टिल वी सी दैट लैंग्वेज पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर डिविजन्स भी क्रिएट करती है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एसेंशियल फॉर द ट्रू सक्सेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? हमारा जो पैसेज है वो क्या कहता है कि अगर इंडियन फेडरलिज्म को सक्सेस करना है तो क्या करना चाहिए? स्टेट कंट्रोल बाय द सेंटर, नो, फेडरलिज्म तो सेंट्रल का कंप्लीट कंट्रोल हो गया तो वो तो कंप्लीटली यूनिटरी हो जाएगा, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। फॉस्टरिंग कॉपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी, पावर शेयरिंग, दैट इज ट्रू कि अगर आप फेडरलिज्म को सक्सेस करना चाहते हो तो पावर शेयरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, साथ में कॉपरेशन होना चाहिए, हर स्टेट दूसरे स्टेट्स को कॉपरेट करे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉपरेट करे, और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजियन हो, कोई भी हर डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, okay, it is a new paragraph. It is all about economic disparities. Economic disparities का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का, वेल्थ का, वो कहीं ना कहीं बराबर नहीं है, इनकम का वो भी कहीं ना कहीं बराबर नहीं है। कुछ एरियाज ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है, कुछ एरियाज इकोनॉमिकली हमें कम पावरफुल देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की। थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड mere differences in income and wealth, permeating the very fabric of the society through access to education, healthcare and opportunities. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का एक इम्पैक्ट तो हमें इनकम में देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ इनकम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको और आगे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ केयर, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। At their root, disparities are often maintained by the systemic structures that favor a privileged few. अब इस प्रकार का हमारे डिस्पैरिटीज इस तरीके की होगी कि सिस्टम भी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं प्रिविलेज कुछ ही लोगों को करता है, ठीक है, परपेचुएटिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन्स, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं हमारे देश में मार्जिनलाइजेशन को इंक्रीज करता है। These inequalities are reinforced not only by marketing dynamics but also by political power that shape policies benefiting those already wealthy, a process known as rent seeking. अब ये जो inequalities हैं, ये पॉलिटिकल पावर जो है इससे क्या करता है, कुछ लोगों को बेनिफिट देता है। देखो कई बार हमारे देश में देखने को मिलता है कि सर्टेन प्रिविलेजेस पीपल, दोज हु आर रिच और वेल्दी, दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज कंपेयरिंग टू मार्जिनलाइज्ड और पुअर सेक्शन, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनइक्वलिटीज जो हैं ये मतलब मार्केट की वजह से ही नहीं होती इनइक्वलिटीज, ये इनइक्वलिटीज कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो जब इस प्रकार की चीजें होती है और पर्टिकुलर लोगों को फायदा देने की कोशिश की जाती है, इसको हम रेंट सीकिंग बोलते हैं। द कंसिक्वेंस आर प्रोफाउंड। अब रेंट सीकिंग का नुकसान क्या होता है? डिमिनिश सोशल कोहेजन, जो सोशल एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं खराब होता है।
रेस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी की जो मोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब होती है. एंड इनहिबिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है. इकोनॉमिक इनविटीज इंटरवीन्स विद द कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन, रीइंफोर्सिंग हायरार्कीज एंड लिमिटिंग द एजेंसी ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन. अब देखो इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पर भी होता है कि कहीं ना कहीं हायरार्की सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है. ठीक है. Addressing economic disparities require more than redistributive policy, demands a critical re-examination of the institution. अब देखो अगर हम इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर से हमारे सिस्टम को फिर से क्या करना पड़ेगा, री एग्जामिन करना पड़ेगा. हमें रिलेशंस पावर रिलेशंस के बीच में जो है एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है. हमें जो है इनइक्वलिटी को कम करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और इक्विटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर चीज़ों का, रिसोर्सेज का, हर चीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में हो सके. चलिए अब इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया है. अब इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन है उनके आंसर्स को हम फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए की फैक्टर दैट परपेचुएट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन द पैसेज. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में 4 चीज़ें, जैसे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेंट सीकिंग है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, नेचुरल टैलेंट एंड डिफरेंसेस है, क्लाइमेट चेंज है. तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है. तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो व्हाट वी कॉल इट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है वो हमने क्या पढ़ा था, रेंट सीकिंग. तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, rent seeking and political power. चलिए now move to question number 2. According to the passage, economic disparities affect society by. ठीक है भाई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होते हैं तो सोसाइटी को क्या नुकसान होता है. सोशल कोहेजन, सोसाइटी के बीच में जुड़ाव बढ़ता है, गलत है. रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अचानक से गरीबी, सब लोग गरीब हो जाते हैं, ये भी गलत है, एकदम से तो नहीं हो सकते. प्रोमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या है कि सोसाइटी के अंदर अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है तो कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी रुकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाती है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इन चारों में से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का ज़्यादा इंपैक्ट किस पर नहीं पड़ता है या कौन इसका पार्ट नहीं है. साइकोलॉजिकल हायरार्कीज, ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का साइकोलॉजिकल हायरार्की से लेना देना है, ये तो होता ही है. ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है नॉट मेंशन. ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये भी सही है कि भाई अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होगी तो कुछ लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं मिलेगी. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल इन्फोर्समेंट ऑफ इनइक्वालिटी, तो कल्चरल रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर होता है. तो कौन सा पार्ट नहीं है, किस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पैसेज सजेस्ट दैट मेयरली रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज आर. हमारे देश में बता रहे हैं कि हमारे देश में जितनी भी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज बनाई जाती है वो क्या है, सफिशिएंट है जिससे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज खत्म हो सकती है. तो दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज है अभी तक कोई भी पूरी तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को ख़त्म नहीं कर पाई हैं. हार्मफुल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी गलत है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नुकसान तो नहीं पहुंचाती है. अननेसेसरी फॉर सोशल चेंज, की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है. इनइफेक्टिव विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हाँ ये सही है कि अगर आप कितनी भी पॉलिसीज बना लो, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो, ठीक है, और अगर उसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ जोड़ा नहीं जाए तो वो क्या हो जाएंगी, इनइफेक्टिव हो जाएंगी. तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज पैसेज आइडेंटिफाई नेसेसरी फॉर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक इक्विटी. अगर हम इकोनॉमिक इक्विटी मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो हम करना चाहें, अगर हम इकोनॉमिक इक्विटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़रूरी है, कलेक्टिव विल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ज़रूरी है, इंक्रीज टैक्सेशन ज़रूरी है, इग्नोरिंग सोशल नॉर्म्स ज़रूरी है. तो सिंपल सी बात है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए सबकी इच्छा, कलेक्टिव विल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गवर्नमेंट भी आ गई, जिसमें पीपल भी आ गए, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के वो सब के सब उसके अंदर आ गए. ठीक है, और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैसेज दे रखा है, लास्ट पैसेज है हमारे इस पेपर का, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस पेपर शिफ्टिंग क्लाइमेट. इट इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट. तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है कि शिफ्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया डाइवर्स ज्योग्राफी मेक्स इट यूनिकली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. देखो भारत में जो
क्लाइमेट पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के हम शिकार हुए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि मॉनसून पैटर्न्स बदले हैं। वो जगह जहाँ पर ड्रॉट फ्लड्स नहीं है वहाँ ड्रॉट फ्लड्स देखने को मिले हैं, वो जगह जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ बारिशों के साइकिल देखने को मिले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर बदला है, इससे क्या हुआ, इसका क्रॉपिंग पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ के अंदर एनर्जी की देखो क्या, वेर हीट स्ट्रेस इन कोस्टल एरियाज इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड एंड वाटर स्कैरसिटी। मोर ओवर क्लाइमेट चेंज थ्रेटन इंडियाज लाइवलीहुड, हमारे लाइवलीहुड पैटर्न के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर फेस हमारा खराब होता है, ठीक है। और फिशर फॉक सफ़र, ओशन वार्मिंग की वजह से फिश माइग्रेशन देखने को मिला है, मतलब गर्म पाना ठंडे पानी की धाराओं में जो है वो फिश रहना पसंद करती है, लेकिन जब ओशन करंट्स वार्म आने लग गए तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाइमेट शॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टैग्नेंट एयर्स हैं, पर्टिकुलर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है टेम्परेचर, और एफोरेस्टेशन की जो ड्राइव्स हैं वो करनी है बहुत ज़रूरी है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब इस बेसिस पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पैसेज implies that India's vulnerability to climate change primarily stems from, भारत वल्नरेबल क्यों है? तो भाई वल्नरेबल होने की तो रीजंस है। भारत एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल कंट्री है, डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लोगों की तो है ही है, लैंडफॉर्म्स की है, क्लाइमेट की है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज है। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें कि भारत वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज का क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि भाई हमारी जोग्राफी और हमारी सोसाइटी। तो इन चारों ऑप्शन में हमारी जोग्राफी और हमारी सोसाइटी की जो बातें हैं वो कौन कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड जोग्राफिकल वेरिएशन अक्रॉस द रीजन। तो ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंडियाज एनर्जी स्ट्रेटेजी फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हम क्या देख सकते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो देखो, स्ट्रेटेजी तो कोई भी देश हो वो क्लीन एनर्जी की तरफ ही जाना चाहता है, क्योंकि उसके देश में अगर क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, उसके देश में अगर हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ पर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स अगर वहाँ पर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो हम इस पैसेज से क्या समझ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हैज फुल्ली रिप्लेस कोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दैट इज फॉल्स, ऐसा नहीं हुआ है। इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज लिटिल इंपैक्ट ऑन एनर्जी कंजप्शन, ये भी फॉल्स है, भाई बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद क्लीन एनर्जी अडॉप्शन इज स्टिल ए मेजर चैलेंज, ठीक है। तो कोई भी देश हो वो अगर क्लाइमेट चेंज जैसी स्ट्रेटेजी जूझना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है, तो वहाँ पर क्लीन एनर्जी की बात होती है, और भारत में इस क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। और क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी इस पैसेज से हमें क्या निकालते हैं कि भारत आज भी जूझ रहा है किस चीज़ को लेकर, एक बैलेंस बिठाने को लेकर कि क्लीन एनर्जी भी हो और प्लस इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द ऑथर कनेक्ट रूरल एंड अर्बन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में रूरल और अर्बन एरिया के क्लाइमेट कनेक्शन को कैसे जोड़ा है। ऑप्शन ए, बाय शोइंग दैट बोथ फेस इंटरलिंक्ड स्ट्रक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइवलीहुड एंड लिविंग कंडीशन। Option B, by emphasizing the rural areas suffer more severely than cities, by suggesting urban resilience strategies are more successful, by contrasting their challenges as unrelated phenomena। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बताया पैराग्राफ के अंदर, बाय शोइंग दैट बोथ फेस इंटरलिंक्ड स्ट्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइवलीहुड्स एंड लिविंग कंडीशन, दोनों की एरियाज में इंपैक्ट पड़ने को देखने को मिल रहा है। तो पैराग्राफ से यही हमें आंसर मिलता है। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which assumption underlies the passage argument about India's climate future। ठीक है, इन चारों एजम्पशन में से वो कौन सा एजम्पशन है जो कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट फ्यूचर के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। क्लाइमेट रेजिलियंस डिपेंड्स ऑन ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड साइंस। अगर आप क्लाइमेट से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हो तो आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटीज हैव लिटिल इन्फ्लुएंस, इसका कोई लेना देना नहीं। इंटरनेशनल एक्शन इज अननेसेसरी। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What central tension does the final paragraph highlight in the India's climate narrative। ठीक है, भारत के सेंट्रल टेंशन में, इस पूरे पैराग्राफ में जो सेंट्रल टेंशन है वो क्या है क्लाइमेट नैरेटिव को लेकर।
द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. द ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट एम्बिशन इकोलॉजिकल बैलेंस, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एडेप्टेशन कैपेसिटीज, इसका भी कोई लेना देना नहीं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज बाय क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, इट आल्सो नथिंग टू डू. तो हमें ये देखने को मिला इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, साथ में हम डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं. तो इंडिया की यही स्ट्रेटेजी जिसको हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह से देखते हैं. तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. I hope you got all the answers of your question and best of luck for your result. Thank you so much and have a very nice day.